જય માતાજી. નેક્સસ સ્ટોરી પબ્લિકેશન અને સાગરભાઈને હાર્દિક શુભેચ્છાઓ અને અભિનંદન કે આજે 22 ફેબ્રુઆરીએ આપ જે કાર્યક્રમ કરવા માંગો છો એને માટે હું આપને હાર્દિક શુભેચ્છા પાઠવવા માંગુ છું કે એક જ દિવસમાં 51થી વધારે પુસ્તકોનું વિમોચન જ્યારે આપ કરવાના છો ત્યારે આશા એ જ છે કે વર્લ્ડ રેકોર્ડની તમામ બુકમાં આપનું નામ આવે અને ભાવનગરનું નામ આપ બહુ આગળ લઈ જાઓ. સાથે સાથે તમામ લોકોને હું એ કહેવા માંગુ છું કે આ જે 51 પુસ્તકો છે એમાંથી અન્ય પુસ્તકો એવી છે જે આરોગ્ય વિષયની છે અને અન્ય બીજી પુસ્તકો છે જે અન્ય કલાકારની વિશે પણ છે. તો ભાવનગર જે કલા અને સંસ્કૃતિની નગરી છે એ પ્રમાણે આપે આ વાત ધ્યાનમાં રાખીને આવી પુસ્તકનું સિલેક્શન કર્યું છે એને માટે પણ આપને ખૂબ ખૂબ આભાર. આપ સૌને મારા જય માતાજી અને હાર્દિક શુભેચ્છાઓ. હેલો માય ડિયર ફ્રેન્ડ્સ, નમસ્કાર. હું છું આપનો દોસ્ત હાસ્ય કલાકાર અને એન્કર મેક્સ આહિર કચ્છથી. અને આપ સૌને જણાવતા મને ખૂબ જ આનંદ થાય છે કે ધ નેક્સસ પબ્લિકેશન અને ધ સંકલ્પ ગ્રુપ દ્વારા તારીખ 22/2/2022 રોજ એક સાથે 50 જેટલા પુસ્તકોનું વિમોચન કરીને એક વર્લ્ડ રેકોર્ડ સ્થાપિત થવા જઈ રહ્યો છે. મિત્રો, ભારતીય સાહિત્યને વૈશ્વિક સ્તર સુધી પહોંચાડવાના આ ઉમદા પ્રયાસને એક શિક્ષક તરીકે અને કલાકાર તરીકે મારા અનેક અભિનંદન આપું છું અને મારો ખૂબ રાજીપો વ્યક્ત કરું છું. નમસ્તે મિત્રો, હું છું શહેનાઝ શેખ. જણાવતા ખૂબ આનંદ થાય છે કે નેક્સસ પબ્લિકેશન અને સંકલ્પ દ્વારા લેખકો અને કવિઓ પોતાની પુસ્તકોનો વિમોચન કરી ઇન્ડિયા બુક ઓફ રેકોર્ડ અને એશિયા બુક ઓફ રેકોર્ડ કરી રહ્યા છે. તે બદલ હું સર્વને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું. थैंक यू सो मच. नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सुथार गांधीधाम कच्छ से. सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा है कि नेक्सस पब्लिकेशन और संकल्प द्वारा लेखकों और कवियों की बुक्स पब्लिश की जा रही है जिनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल होने जा रहा है, जो कि बहुत ही प्राउड मोमेंट है हम सबके लिए. और उन सभी लेखकों और कवियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, और खास करके पूजा बेन को जिनकी खुद की बुक मंथना भी इसमें शामिल है. सो बहुत सारी बधाई आप सभी को. तो वंदे मातरम साथियों. जैसे कि बुक्स के बारे में काफ़ी कुछ सुना है, मैंने देखा है. मैं बहुत ही कम किताबें पढ़ता हूँ और मेरे एक मित्र ने मुझे सजेस्ट किया मेरा भारत महान किताब पढ़े. और स्पोर्ट्स वालों का किताब का थोड़ा लेना देना कम है, लेकिन मैंने किताब पढ़ी है और मुझे बड़ा अच्छा लगा. बहुत से इसमें कुछ हिडन स्टोरीज हैं जो हमारे समाज में या किसी को बताई ना लिखाई ना पढ़ाई गई है. तो इन भाई साहब ने काफ़ी अच्छा लिखा है इसके बारे में. और मैं जैसे ही एडवेंचर स्पोर्ट्स का आदमी हूँ तो कम पढ़ता हूँ, लेकिन मैंने पूरी बुक पढ़ी है और मुझे बड़ा अच्छा लगा और बड़ा मज़ा आया. जय हिंद, जय माता. જય માતાજી, જય મુગલ. મિત્રો, હું નિમેશ દાન ગઢવી. આપ સર્વેને જણાવતા ખૂબ જ આનંદ થાય છે કે નેક્સસ પબ્લિકેશન અને સંકલ્પ ગ્રુપ લાવી રહ્યો છે આપ સર્વેને માટે 50થી વધારે પુસ્તકોનું વિમોચન 22 તારીખે એટલે કે 22 ફેબ્રુઆરી. હું ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું નેક્સસ ગ્રુપ, સંકલ્પ પબ્લિકેશન. Hi, this is Mrugesh Jani from Hamilton, Canada. I'm feeling super excited to share this amazing news that Nexus Publications and Sankalp Sahitya are publishing more than 50 books on February 22nd. Congratulations to all the writers on the recent publication of their book and supporting this historical event. Especially, I would like to take this opportunity to thank and congratulate Pooja and Davendra Pathak for their success and all the best for your new book launch. Thank you. श्रेष्ठ शिक्षक, श्रेष्ठ आचार्य, श्रेष्ठ केळवणीकार के अनगणित अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर महेश ठाकर नारायण विद्या विहार में आचार्य के पद पर कार्यरत हैं. विभिन्न एजुकेशन ट्रस्ट एवं संस्थाओं में वो ट्रस्टी हैं, अनगिनत संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं. एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया एवं ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया के स्टेट प्रेसिडेंट हैं. राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मंच पर अनेक अवार्ड से वो सम्मानित हुए हैं. सिर्फ यही नहीं, वंदे वसुंधरा प्रोजेक्ट के तहत हर साल 125 नीम के पेड़ लगाते हैं, उनका संवर्धन भी करते हैं. आओ लेखक ने મળીએ. इस कार्यक्रम के तहत साहित्य और पठन को नया आयाम देने हेतु वे साहित्यकार के साथ सम्मेलन भी आयोजित करते हैं. तो ऐसे बहुआयामी व्यक्तित्व से हम बात करेंगे. डॉक्टर महेश ठाकर जी, आपका हार्दिक स्वागत है. प्लीज. नमस्कार. ये कोरोना काल खत्म होने पर है और हम लोग साहित्य में समृद्ध हो रहे हैं. आज का दिन हमारे लिए
बहुत खास है। साहित्य के इतिहास में शायद स्वर्णिम दिवस कहा जाए तो सबसे अच्छा रहेगा। नेक्सस स्टोरी पब्लिकेशन एवं संकल्प साहित्य समूह के द्वारा आजादी के अमृत पर्व पर साहित्य को वैश्विक स्तर पर ले जाने का यह प्रयोग बहुत ही सराहनीय है। यहाँ उपस्थित सर्वे का मैं स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं और आभार व्यक्त भी करता हूं। आज यहाँ 50 से ज्यादा पुस्तकें प्रकाशित होने जा रही है। ये अपने आप में एक विशेष बात है और खास बात यह है कि छोटे बच्चे मतलब के 10 वर्ष के आयु से 70 साल के बुजुर्ग तक सब साहित्यकार इसमें जुड़े हुए हैं। ये गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी और मराठी भाषा में पुस्तकें प्रकाशित हो रही है। सबसे कम समय में ये पुस्तकें तैयार करके समाज को अर्पित करने का कौशल जी का जो ये प्रयोग है, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। पुस्तकों के बारे में हम कहते हैं कि अभी इसी वक्त मतलब कि जो डिजिटल काल चल रहा है, इसमें पुस्तकें सबको आनंदित करने के लिए सबसे सर्वोत्तम साधन है। एक सुखद अनुभूति है। रेगिस्तान के बीच, समंदर में, पहाड़ में, गुफा में या कोई कोठरी में हमको पुस्तक मिल जाए तो उसकी दुनिया अलग होती है। दोस्तोयेव्स्की के बारे में कहीं पढ़ा था कि वह वेनिस शहर घूमने गए थे। वहीं पर विक्टर ह्यूगो की प्रख्यात पुस्तक द मिजरेबल प्रकाशित हुई थी। उन्होंने वेनिस में घूमने के बजाय पुस्तक पढ़ने में पूरा हफ्ता होटल के रूम में बिता दिया था। दूसरी बात यह है कि पूरा यूरोप जिसके लिए आसक्त था, उस महाकवि गेटे के उपन्यास के बारे में हम जानते हैं कि नेपोलियन ने युद्ध के मैदान पर उसको पढ़ा था। पुस्तक के बारे में क्या कहे और क्या ना कहे, ये बड़ा दुविधा का विषय है। इंसान पुस्तक को पढ़ने में जब रस दिखाता है, रुचि दिखाता है, तो उनका जो लगाव है वह कुछ इस प्रकार होता है। वो पुस्तक के साथ हंसता है, रोता है, उदास होता है, खुश हो जाता है। कभी कभी तो वो पुस्तक की उपस्थिति में खुद से बात करना भी शुरू कर देता है। कभी कभी वह खुद को केवल पुस्तक के सामने उजागर करता है। ऐसे तो हम गुजरातियों के बारे में कहा जाता है कि व्यापार, धन और हिसाबों में अधिक रुचि रखते हैं। हम पुस्तकें नहीं, खातों की जो किताबें हैं उसमें ज्यादा रुचि रखते हैं। और तो और हम उसकी पूजा भी करते हैं। पर आज वो गलत साबित हुआ। वो कौशल जी की वजह से हुआ कि आज हम लोग इतने सारी किताबें एक साथ समाज को अर्पित कर रहे हैं। कनाडा के एक प्रोफेसर मार्शल मैकलियो ने कहा था कि कुछ सालों में इंसान किताब पढ़ना बंद कर देगा, क्योंकि मास मीडिया के साधन में जैसे कि सिनेमा, टीवी, रेडियो, कंप्यूटर उसे किताब से कम समय में ज्यादा खुशी देता है और ज्यादा जानकारी भी देता है। जब सच में ऐसा होता है तो किताब के बिना दुनिया कैसी होगी, हम कल्पना कर सकते हैं। हम उस समय की बात को जरा सोचे कि जब पुस्तकें नहीं थी, इंसान नाच रहा था, अपनी बहादुरी के नारे लगा रहा था, खेती कर रहा था, गीत गुनगुना रहा था, एकांत में ध्यान कर रहा था। ये सब किसी के साथ साझा करना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई साधन नहीं था, कोई माध्यम नहीं था। वह अपने आप में एक घुटन महसूस करता था। अपने अंदर की इस घुटन को वह कहीं दूसरों के साथ साझा करने के लिए उत्सुक था। किताबों के बिना दुनिया में नारे थे, संगीत था, कुछ छंद थे, कुछ मंत्र थे, लेकिन उसको अपने आप में रखने के लिए कुछ भी नहीं था। सदियों से मनुष्य ऐसी तड़पन में, उनकी लालसा में तप रहा था और परिणाम स्वरूप हमको पुस्तक
प्राप्त हुए। पुस्तक एक अद्भुत वस्तु है। उसका भौतिक शरीर होने के साथ उसमें एक आत्मा भी है। इसमें चतुर विचार है, भावनाएं है, ज्ञान है, कितना कुछ मिलाकर एक पुस्तक बनता है। हम सोचे तो एक छछूंदर का बच्चा जन्मने में 2-3 हफ्ते लगते हैं, एरावत का बच्चा जन्मने में 18 महीने लगते हैं, जबकि एक पुस्तक का जन्म लेने में सदियां बीत जाती है। और इसी वजह से शायद पुस्तक सदियों तक जीवित रहता है। तो आज के इस अवसर पर मैं मेरी अपनी किताब के बारे में थोड़ी बात करने का लालच करता हूं कि मेरी जो किताब है शिव तनैया मां रेवा, उनमें मां रेवा के महात्मा को हमने लिया है। क्योंकि मां रेवा की बातें हम करें तो प्रकृति के पास जाने की बात उसमें की गई है। हमारे पंच महाभूतों की बात हम जानते हैं, पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि और जमीन। ये सबको हम सोचे तो ये सभी हमको घर में उपलब्ध हो जाते हैं, पर प्रकृति जिसके पास हम जाए तो लता, पेड़, पौधे, पक्षियां, ये सब हमको मिलते हैं। और प्रकृति का मतलब ही यही होता है कि भगवान के पास जाना। प्रकृति में जाकर के हम इनकी अनुभूति कर सकते हैं और इसे ही परिक्रमा कहते हैं। कहते हैं कि मां नर्मदा अपने शरण में आए किसी भी आदमी को तकलीफ नहीं पहुंचाती, उनको पालती है। जैसा कि हम जानते हैं कि नर्मदा की परिक्रमा हजारों साल से चल रही है और अभी भी चालू है। जो उसमें कुछ भी नहीं होता तो शायद परिक्रमा रुक गई होती, पर अभी भी परिक्रमा चल रही है और मां रेवा ये परिक्रमा करने वालों का पूरा ख्याल रखती है। नर्मदा जी के तट पर शास्त्रों के अनुसार देवताओं, ऋषियों और अनेक महापुरुषों ने अनेक स्थानों पर तपस्या की है, उसकी महानता को बढ़ाया है। अनेक कहानियों उनके साथ जुड़ी है। नदी को हम लोक माता के नाम से जानते हैं। विश्व की सभी संस्कृतियां का विकास नदी के तट पर ही हुआ है। यह पुस्तक नर्मदा के विभिन्न रूपों को यौगिक तरीके से और आध्यात्मिक तरीके से, सांस्कृतिक तरीके से और प्राकृतिक तरीके से पेश करती है। मुझे विश्वास है कि यह पुस्तक आज की नई पीढ़ी के लिए नर्मदा को समझने और समझाने में बहुत उपयोगी होगी। धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच सर। आपने जो पठन के लिए जो पुस्तकें पढ़नी चाहिए उसका जो महात्म्य सभी लोगों को बताया, उसके लिए मैं आभारी हूँ। आपने जो पुस्तक अभी लिखी है और जो आप एक प्रकृति संवर्धन का कार्य कर रहे हैं, उसके साथ जो ये समन्वय के द्वारा जो आपकी किताब रची गई है, हम जरूर पढ़ेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड थैंक यू सो मच सर। मित्रों, अब वो घड़ी आ गई है जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार है। हम अभी अपनी 57 बुक का ई लॉन्चिंग करने जा रहे हैं, ई विमोचन करने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी स्माइल बढ़नी चाहिए। आप थोड़े से खुश हो जाइए, थोड़ी सी स्माइल बिखेरिए। आप
थिंक या आप लोग देख सकते हैं मेरा कैमरा। राइट 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 राइट। ये जो अंजार में अभी लाइव है आपके फिजिकल सामने, प्रोग्राम अंजार में जो अभी हो रहा है। हाँ। जी 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 जी, आप बोलिए कंटिन्यू प्लीज। जो अंजार में अभी प्रोग्राम हो रहा है उसके आप एकदम लाइव आप देख रहे हैं। जो यहाँ पे बुक की ओपनिंग सेरेमनी है, पुस्तक विमोचन, राइट। तो ये इतने सारे कलाकार, इतने सारे कवि, इतने सारे लेखक हमारे सामने हैं और उन सब के सामने आप देख सकते हैं कि सबने अपनी पुस्तक अपने हाथों में पकड़ के रखी है। तो कल जुड़े अंजार में संकल्प परिवार के सभी साहित्यकारों को ढेरों शुभकामनाएं। हमारे कुछ गेस्ट हैं, हमारे कुछ जो मित्र हैं वो भी कुछ कहना चाहते हैं, पर उससे पहले मैं काफी समय से देख रहा हूं कि हमारे घनिष्ठ मित्र और वरिष्ठ साहित्यकार निपेश पंड्या जी यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित है। काफी चाव से देख रहे हैं, वो खुश हो रहे हैं और सभी को शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। जिन जिन बंधुओं को पता नहीं है कि उन्होंने बहुत ही बढ़िया किताबें लिखी है और जो मैंने पढ़ी हुई है, उद्यास्त और ऋणानुबंध, बहुत ही बढ़िया किताब और बेस्ट सेलर है। निपेश जी, आपसे 2 शब्द तो जरूर ही सुनना चाहेंगे हमारे जो साहित्यकार हैं और जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए। जी जरूर, ऐसा अवसर हो और मेरे से मतलब बिना कहे रहा ही नहीं जाएगा। आप देखिए कितना संयोग बन रहा है आज गोपाल जी। संकल्प है, साहित्य का संकल्प हुआ है और उसके साथ जुड़े हैं कौन? कौशल जी, राइट। और कौशल जी जोशी है, उसने तो इतने सारे लेखकों का भविष्य बना दिया आज। तो इससे अच्छी खुशी की बात और क्या होगी। और इसको सबको साथ में कौन लेके जा रहे हैं? सागर जी। और इसके आज कार्यक्रम जो है वो संचालन कौन कर रहे हैं? खुद गोपाल कर रहे हैं। तो ये तो घड़ी अनमोल है। मतलब इसका मैं इस घड़ी का साक्षी बन रहा हूँ, यही मेरा सौभाग्य है। तो बहुत खुश हूँ मैं आज। सभी लेखकों को मैं हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूँ। संकल्प ग्रुप और नेक्सस पब्लिकेशन, नेक्सस नाम देखो आप, नेक्सस नाम का मतलब देखो, एक है कॉमन पॉइंट है, एक जो सेंटर पॉइंट है जो सबको जोड़ता है। ये काम आज कौशल जी ने बहुत अच्छी तरह से किया है। कौशल जी, आपको मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद करता हूँ, अच्छा काम किया है आपने आज। थैंक यू। तो सभी लेखकों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। सभी साहित्य संकल्प परिवार के साथ जोड़े, जिसने ये संकल्प किया कि ये काम करना है। आजादी के अमृत महोत्सव पे इतने सारे साहित्य का अमृत निचोड़ के आज सबके सामने परोसा गया है। तो ये बहुत अच्छी घड़ी है और इसका मैं साक्षी हूँ। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और खास करके मैं थोड़ी क्षमा चाहूंगा सागर जी की कि आज मुझे वहाँ अंजार में रूबरू उपस्थित होना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं आ सका हूँ, इसलिए क्षमा। बट यहाँ से मैं सब लोगों को अपनी शुभेच्छाएं दे रहा हूँ और बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू निपेश जी, आपने हम सबको सराहा और इस कार्यक्रम के आप भागीदार रहे हैं। अभी हम अपने कार्यक्रम के अंतिम छोर पे हैं। यहाँ पे मैं अभी जो हमारे माननीय गेस्ट हैं श्री सरस्वती चंद्र आचार्य जी, उनके बारे में मैं पहले परिचय दे दूं कि सरस्वती चंद्र आचार्य जी अहमदाबाद गुजरात के जाने माने लेखक एवं पत्रकार हैं। आपने पत्रकार के रूप में विभिन्न अखबार एवं न्यूज चैनल के साथ भारत और अमेरिका में भी काम किया है वरिष्ठ पदों पर, और उनकी जो टीवी न्यूज वेबसाइट है हेलो गुजरात टीवी काफी पॉपुलर है। और वो अहमदाबाद फिल्म फेस्टिवल के संस्थापक है। भारत सरकार के द्वारा लेखक के रूप में आपको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बहुत सारे अवार्ड, बहुत सारी चीजें आपके साथ जुड़ी हुई है। सरस्वती चंद्र जी, आपसे हार्दिक अनुरोध है कि इस अवसर पर आप कुछ कहें। आप म्यूट है, आपकी आवाज नहीं आ रही है आचार्य जी। हाँ, अब आवाज आ रही होगी मेरी, और वीडियो ओके है? जी क्लियर है। मैं इस अभूतपूर्व कार्यक्रम में जुड़े हुए ऑनलाइन और कट से ऑफलाइन सारे मेहमानों को प्रणाम करता हूं, और साथ ही जो सर्जक हमारे साथ जुड़े हैं उन सबको मैं अभिनंदन देता हूं। जाहिर है कि साहित्य जगत में आज एक लैंडमार्क, सीमा चिन्ह दिवस है कि
स्थानीय भाषाओं के, मातृभाषाओं के इतने सारे पुस्तकों का एक साथ एक मंच पर लोकार्पण हो रहा है। कल ही हमने मातृभाषा दिवस मनाया और मुझे ये बात की बहुत बड़ी खुशी है कि आप लोगों ने भारतीय भाषाओं का चयन किया है। साथ ही डिफरेंट जॉनर के वैरायटी ऑफ क्रिएटर्स हमारे साथ है। कोई छोटे हैं, कोई बड़े हैं, महिलाएं हैं, युवान हैं और मुझे लगता है हर एक जॉनर के सर्जक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं खास करके संकल्प और नेक्सस दोनों को देता हूं और भाई कौशल जोशी जी की तो साधना पिछले एक महीने में मैंने देखी और दिन रात इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लगे हुए हैं और बिना संकल्प के तो सिद्धि नहीं होती। तो कौशल जी आपको भी बहुत बहुत बधाई। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे हेलो गुजरात न्यूज प्लेटफॉर्म पर भी हम आप सबको प्रमोट कर रहे हैं। ये पूरा प्रोग्राम भी पब्लिश हो रहा है और आपको भी इंडिविजुअली भी इस पर प्रमोट किया जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर hellogujaratnews.com पर। और साथ ही कई सारे जाने माने हमारे साहित्य जगत के चेहरे भी जुड़े हुए हैं। ऑल इंडिया रेडियो की पूर्व निदेशक साधना जी को मैंने देखा। गोपाल भाई आपकी तो आवाज हमेशा की तरह दिल खुश हो गया। मुंबई से शिव नेहा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। आप सबको मेरा बहुत बहुत अभिवादन, बधाई, अभिनंदन। हार्दिक जी, उसके बाद रेमान जी आपके पास आते हैं। हार्दिक जी प्लीज। नमस्कार सर। या मैं अभी फिलहाल घर से काम कर रहा हूँ तो मैं वीडियो ओपन नहीं कर पाऊंगा। मैं सिर्फ शब्द के द्वारा आपसे कनेक्ट करने का प्रयास करूंगा। प्लीज प्लीज। एक मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि जो सर्जन की जो मेरी यात्रा है, जो नेक्सस पब्लिकेशंस के साथ में ये शुरू हुई है, इसको मैं आगे भी जारी रखना चाहूंगा। और मुझे बहुत ही आनंद हुआ कि इंडस्ट्री में 15 साल निकालने के बाद एक दूसरी मंजिल की ओर मैं बढ़ा हूँ और पहली मंजिल में ही एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में ये मेरा प्रयास दर्ज होना, बाकी सारे साहित्यकारों के साथ में मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है और आगे भी हम लोग और जितने भी साहित्यकार हैं इस संकल्प से सिद्धि तक आगे जाएंगे, ऐसा मेरी इच्छा है। डेफिनेटली। और हम भी यही आशा करते हैं कि और भी किताबें आपकी ओर से हमें पढ़ने को मिले, आप साहित्य सृजन में आगे बढ़ते रहें। और अब हमारे साथ जुड़ेंगे रहमान जी। यस सर, रहमान जी। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। एंड कौशल भाई, थैंक यू सो मच टू गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी, जो आपने अपॉर्चुनिटी दी। ऑलरेडी हम लोग एक बुक लॉन्च कर चुके हैं साथ में, उसका रिस्पॉन्ड भी बहुत अच्छा है। थोड़ा सा इसीलिए वो इंग्लिश में बनाई कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसका फायदा उठा सके, स्कूल कॉलेजेस वगैरह उठा सके। और स्किल्स यहाँ पे आधे से ज्यादा तो लेडीज है, तो थैंक यू सो मच टू टीच अस अ वंडरफुल स्किल्स, क्योंकि जितनी सारी स्किल्स आप लोगों के पास है शायद ही किसी आदमी के पास होगी, क्योंकि पूरे दिन सुबह से लेके शाम तक आप लोग स्किल्स में हमेशा रहते हैं। तो दूसरी किताब जो है वो इसी के बिहाफ पे लिखी थी। एंड कोशिश ये करेंगे कि आने वाले पलों में कौशल जी के साथ मिलकर सूरत में भी हम लोग ऐसा ऑफलाइन सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज करेंगे विथ अवर एनजीओ, जो हम एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हुए हैं, उनके साथ मिलके हम आप सभी को इनवाइट करेंगे। कोशिश करिएगा कि आप सभी हमारे साथ जुड़े, उसमें हम लोग ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे इस मंच पे जितने भी बुक लॉन्च हुई हैं उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। रहमान जी, बहुत ही बढ़िया प्रयास है। ये जो बात आपने कही है कि मैं उन सभी को कहना चाहूंगा कि सिर्फ अपनी पुस्तक के लिए ही प्रयास ना करें, जो ये यहाँ पे आपके साथ और भी नए दोस्त बने हैं, राइट। आज आप इस माध्यम से जुड़े हुए हैं तो सिर्फ अपना ना सोचे, दूसरों का भी सोचे। आपको अगर किसी और की भी पुस्तक, कोई बुक अच्छी लगती है तो विचार साझा करें सोशल मीडिया पे। अपने बुक के बारे में तो लिखे ही, अगर आपको पता चले तो किसी और की जो पुस्तक है उनके बारे में भी सोशल मीडिया में जरूर शेयर करें। दर्शना जी नमस्कार। गुड इवनिंग। नेक्सस पब्लिकेशन एंड संकल्प टीम, आज का ये खूबसूरत शाम बहुत ही यादगार रहेगी
और मैं चाहूंगी कि आज जितने भी राइटर्स है जिनकी भी बुक आई है उन सबको, मैं जो यूरोप में एक बुक के लिए कुछ करने जा रही हूँ वहां पे मैं प्रमोट करूँ। तो जितनी भी इंग्लिश बुक है अभी के लिए वो अगर मैं उनके लिए कुछ कर पाऊंगी तो अच्छा रहेगा। मैंने जब ये मेरी बुक के लिए इंग्लिश में जब मेरा वर्जन रेडी हुआ, मेरा गुजराती वर्जन भी कौशल भाई ने ही नेक्सस पब्लिकेशन थ्रू किया, जिसका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और ये जो इंग्लिश बुक है अभी से यूरोप में उसके बहुत से लोगों ने डिमांड की है, तो मुझे आशा है कि बुक है उसको प्रमोट कर पाऊँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू दर्शना जी। डेफिनेटली मुझे लगता है कि जो सभी रीजनल लैंग्वेजेस हैं वो वहां पर भी जो हमारे इंडियंस हैं उनको पढ़ने को मिले तो बहुत ही अच्छा रहेगा। चिराग जी आप बात कर सकते हैं। जी हाँ, मैं वेलकम। कैन यू लिसन? आप सुन सकते हैं? ओके। हाँ जी ऑडिबल। व्यवसाय से मैं सिविल इंजीनियर हूँ, कंस्ट्रक्शन का आदमी हूँ। तो सीमेंट से संवेदना तक एक यात्रा, अद्भुत यात्रा रही। इसके पहले मेरी किताब एक आई, गुजराती किताब आई, कौशल भाई ने उसे पब्लिश किया, अच्छा लगा मुझे। और ये किताब लिखना शुरू की थी मैंने 2015 में। मैं आज जब मेरी रिलीज हुई है उसको अंतिम तक पहुंचाने के लिए मेरी बहन दर्शना बहन का मैं बहुत आभारी हूँ। दर्शना बहन ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया करने के लिए। कौशल भाई का भी मतलब इतना बहुत सहयोग मिला कि मैं कर सकूं। तो सीमेंट से संवेदना तक का सफर इस संकल्प के माध्यम से आज रिकॉर्ड के दिन में पब्लिश हो रहा है। इसके वजह से बड़ी खुशी क्या हो सकती है। ये प्रेम की बात करी है मैंने, बस आओ सब प्रेम में पड़े और प्रेम से जिए। जी हाँ, थैंक यू। डेफिनेटली बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भी जो इंजीनियर के मन में जो भावनाएं होती है ना वो मतलब इंटरेस्टिंग होती है। मैं भी इंजीनियर हूँ, कौशल जी भी इंजीनियर है, तो डेफिनेटली और भी आपकी ये जर्नी और भी आगे बढ़ती रहे, यही शुभकामनाएं। और अब चैताली जी आप आगे आपका नेटवर्क सही हो गया तो आप प्लीज ज्वाइन करें। चैताली जी। Good evening, everyone. Am I audible? Yeah. Okay. First of all, I want to thank everyone. आप सभी को मेरा खूब खूब तहे दिल से धन्यवाद। और मैं कहना चाहती हूँ कि कौशल भाई और सागर भाई और गोपाल भाई, इन तीनों का मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि सभी को साथ में लेकर चलना वो इतना आसान नहीं होता। और आपने इतने प्रेम भाव से सभी को साथ में रखकर ये जो किया वो बहुत काबिल तारीफ है। और आप हम सभी को इतने अच्छे से आपने वो सब हैंडल किया, वो उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। और बस अब आखिरी मुकाम पर हम मैं अभी कौशल जी को इनवाइट करूं उससे पहले, क्योंकि आजादी का अमृत पर्व है, हमें जो ये स्वतंत्रता मिली थी वो ऐसे ही नहीं मिली है। तो उसके लिए माखनलाल चतुर्वेदी जी की एक रचना जिसके वजह से मैं प्रेरित हुआ था, मेरी किताब मेरा भारत महान, जो अप्रसिद्ध क्रांतिकारियों हैं उनके लिए। तो मैं वो सुना के मैं कौशल जी को बोलूंगा कि वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी की एक बहुत सुप्रसिद्ध रचना है, पुष्प की अभिलाषा। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सर पर चढ़ू भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ देना बनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मुझे तोड़ देना बनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का धन्यवाद, आपने इतना सहयोग दिया है, इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। माँ सरस्वती का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे, यही गोपाल खेतानी की मनोकामना है। कौशल भाई, आपका ये जो आभार विधि का कार्यक्रम आप आगे बढ़ाइए प्लीज। थैंक यू। सॉरी थोड़ा एक्सटेंड हुआ है, बट विल अबाउट टू फिनिश दिस इवेंट। इवेंट रिलेटेड जो भी हाइलाइट्स है उसके बारे में मैं वोट ऑफ थैंक्स अदा करना चाहूंगा।
ये जो इवेंट है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड एंड एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर में रजिस्टर हुई है, जिसके अंदर में हम लोगों ने मैक्सिमम रीजनल पब्लिश्ड ऑथर बुक लॉन्चिंग इन अ सिंगल डे के सब्जेक्ट्स के ऊपर जो है इसको रजिस्टर किया हुआ है। 57 बुक्स हम लोगों ने आज के दिन में लॉन्च की है और इसके अंदर में टोटल 59 ऑथर्स का सहयोग रहा है। 2 बुक ऐसी है जिसके अंदर में 2 ऑथर है, इसके लिए 57 बुक्स है। और ये 57 बुक्स जो है हमने काफी चैलेंजिंग टाइम के अंदर में फिनिश किया हुआ है। हम लोगों ने ऑलमोस्ट 80% प्रिंटिंग भी कंप्लीट करके सबको दिया हुआ है और बाकी का काफी प्रिंटिंग जो है वो अभी इन प्रोग्रेस है। मैं बताना चाहूंगा कि केवल 60 डेज के अंदर में 57 बुक्स जो है हम लोगों ने कंप्लीट की है, ISBN नंबर के साथ में, कवर पेज डिजाइनिंग के साथ में, बुक डिजाइनिंग के साथ में। और ये सिलसिला एक्चुअली काफी लोगों को हम लोगों ने परेशान भी में भी हो सकता है कि किया रहेगा, क्योंकि कम टाइम के अंदर में काफी चीज जो है वो हमें कंप्लीट करना था, एडिटिंग, करेक्शन, ये वो सब कुछ कम, तो वो सब जो पार्ट है, इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट एंड पार्ट ऑफ लाइफ एक्चुअली। ये सभी की सभी पेपर बैक बुक्स जो है Amazon एंड किंडल एंड फ्लिपकार्ट के ऊपर जो है वो लाइव में भी 1-2 दिन के अंदर में हो जाएगी। सभी की लिंक्स जो है ऑलरेडी क्रिएट की गई है, इंटीग्रेशन चालू है, वो भी लाइव हो जाएगा। ये जितनी भी बुक्स है जिसके अंदर में चिल्ड्रन बुक, पोएम्स, गजल, शॉर्ट स्टोरी, नोवेल, ट्रैवल बुक, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, एजुकेशन, कोर्ट रिलेटेड का बुक है, आर्टिकल्स, स्पिरिचुअलिटी, मोटिवेशनल, स्किल डेवलपमेंट, ये हर एक एरिया के रिलेटेड का बुक हम लोगों ने कवर किया हुआ है। और ये 4 लैंग्वेज के अंदर बुक्स जो है, हिंदी, गुजराती, इंग्लिश एंड मराठी। मराठी एक बुक है जो कि योगेश माथुरिया साहब का बुक है, और जिसको भी हम लोगों ने इसके अंदर में ऐड किया हुआ है। लास्ट में एक चीज मैं आप सब लोगों का अभिवादन करूंगा और थैंक्स अदा करना चाहूंगा, खास करके जो हमारे इवेंट रजिस्ट्रेशन के जो स्पॉन्सर्ड है, श्री त्रिकम भाई, वासन भाई आहिर अंजार से है, जिन्होंने ये इवेंट रजिस्ट्रेशन के लिए हमें स्पॉन्सरशिप दी हुई है। अंजार में आज के दिन में जो भी फिजिकल प्रोग्राम अरेंज हुआ है, जो राधे रिसोर्ट में है, उनके जो ऑनर है श्री पंकज भाई कोठारी, जिन्होंने ये स्पॉन्सरशिप दी है और पूरा रिसोर्ट जो है हम लोगों को यूज करने के लिए दिया हुआ है, उसको मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा। सॉल और फूडिंग रिलेटेड की जो भी फैसिलिटीज है राधे रिसोर्ट में, वहां पे जो डिग्निटीज को मान सम्मानित किया जाएगा, उनका स्पॉन्सरशिप जो है श्री धनजी भाई केरसिया एंड कांजी भाई जगा भाई रावरिया के हस्त किया गया हुआ है, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूंगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जितने भी ऑथर्स है, जो डिग्निटीज है, और जिन लोगों ने जो भी सीनियर लोगों ने हम लोगों को सपोर्ट किया है, गाइड किया है, वो सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बिकॉज आप लोगों का अगर सहयोग और गाइडेंस नहीं रहेगा तो हम लोग ये पड़ाव को पार करना जो है तो थोड़ा मुश्किल था, बट आप लोगों के गाइडेंस के कारण ही ये सक्सेस जो है हम लोगों को मिली हुई है। एंड मैं यहाँ पे माफ कीजिएगा, थोड़ा इंटरप्ट करूंगा कौशल जी। जो हमारे क्या है, हम जिसकी वजह से यहाँ पे हैं, वो हमारे सर आत्मीय इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल डॉक्टर श्री GD आचार्य सर अपने व्यस्त कार्यक्रम से थोड़ा समय निकाल के हमें आशीर्वाद देने हेतु यहाँ पे पधारे हैं। कहते हैं कि प्रलय और निर्माण दोनों ही शिक्षक की गोद में पलते हैं, और आचार्य सर ने सदा ही निर्माण का कार्य किया है। हमारे अंदर जो इंजीनियर के अंदर की जो अलग अलग एबिलिटीज है उन्होंने पहचाना और हमेशा हमें इंस्पिरेशन दिया है, प्रोत्साहित किया है। राम मोरी जैसे जो युवा साहित्यकारों को भी जहां से निकले हैं, वैसे श्री डॉक्टर GD आचार्य सर हमारे साथ मौजूद है। हम जरूर उनसे 2 शब्द सुनना चाहेंगे।
कौशल जी, थोड़ी देर में आपके पास वापस आते हैं, हम आचार्य सर से मिलते हैं। आचार्य सर। Good evening, all of you. Am I audible? Yes, sir. Clear. Okay. सबसे पहले पूरी टीम को, कौशल भाई को मेरा कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। आज 22-22 आगे से बोलो पीछे से बोलो, दोनों तरह से 22-22। इस दिन आपने जो 58 बुक्स का जो लॉन्च किया एट अ टाइम, इट्स ए really very, we can say it's a very grand success of you, and my blessings are always with you. आप लोग अभी जो मेरा एक्सपीरियंस है 40+ का, आज यंगस्टर्स है, they are putting lots of effort and they are putting effort in art also, book writing, movie, even drama. There are lots of abilities you are having and you are putting lots of effort. Here in this case, आप जो ये 50 आर्टिस्ट को, ऑथर्स को एक साथ लेके आए, वो एक सीमा चिन्ह रूप है। और ये जो स्टोरी बुक है, सब ऑथर का मैंने आज, आई वॉज लिटिल बिट लेट, लिटिल बिट तो नहीं बोल सकता हूँ, बट आई वॉज बिजी विथ वन मीटिंग विथ कलेक्टर एंड that's why I am unable to attend full program, but I will watch the YouTube video. You just send me a link. But हर एक ऑथर को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, और खास कौशल भाई और गोपाल भाई, जिस तरह आपने ये प्रोग्राम किया है, I blessed you all, and in future you can do better with compared to today's program. All the best. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, sir. कौशल जी, प्लीज। जी, एक लास्ट में मैं मेरे टीम से गुजारिश करूंगा कि जय भाई और पूजा बहन, जय भाई है क्या? जस्ट टू से हाई। हेलो कौशल भाई। हाँ, जय भाई जो है, जिन्होंने ये जितने भी बुक कवर्स जो है वो डिजाइन किए हुए हैं, ये मेरे टीम में ही है और काफी अच्छा काम किया है। उन्होंने भी काफी चैलेंजिंग काम किया है, डे नाइट लगे रहे और काफी उसको भी परेशान किया है। आई जस्ट वांट टू से थैंक्स अ लॉट टू जय। पूजा बहन है क्या? पूजा गांधी शायद नहीं है, बट एक चीज जस्ट मैं बताना चाहूंगा कि जनवरी मंथ में शी वाज अबाउट टू डिलीवर सेकंड बेबी बॉय, बट वो कंडीशन में भी 9th मंथ चल रहा था, वो टाइम पे भी उन्होंने जितना भी 40-50 बुक्स जो है वो कंप्लीट डिजाइन करने में काफी उसने अपना सहयोग दिया हुआ है। उसको भी मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा। सो दैट इज द थिंग। Yeah, thank you Pooja. So that is the thing, and thank you all the dignities, writers, गोपाल भाई, सागर भाई, जिन्होंने पहले से लास्ट तक हम लोगों ने करीबन दिवाली से ये प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना चालू किया था, और फिजिकली जो है 22 दिसंबर से हम लोगों ने ऑन जॉब हो गए थे और उसके ऊपर हम लोगों ने रियल में काम चालू कर दिया। सो गोपाल भाई एंड सागर भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद। काफी परेशान किया है मैंने उनको, बट एनीवे काफी अच्छा लगा काम करके। जो भी अभी जो रिजल्ट मिल रहा है वो देख करके काफी खुशी मिलती है। सो दैट इज द थिंग। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ओवर टू गोपाल। थैंक यू। बस आखिर में यही कहना चाहूंगा, पढ़ते रहिए और फिर लिखते रहिए, सभी की बुक पढ़े और फिर से हमारे साथ जुड़े। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी इस साहित्य सफर के लिए। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। बाय बाय।